Hello students, from today we are going to study our textbook, the first book snapshot, and we are going to study the first lesson, the beautiful summer of a white horse. So the summer of the beautiful white horse by William Saroyan, we are going to read about it. This is the story about Garo Galenian tribe, an Armenian tribes which was known for its truth and honesty. Now there are two boys from this tribe. The tribe was remarkably poor. They were so poor that they were unable to arrange the meals of two times a day. Now there were two boys, Aram and Murad, and they are very ambitious. Now what they did, we are going to study about them in this story. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. Now the story is being told by a boy named Aram. Aram is telling us that when he was 9 years old, something unexpected had happened. बता रहा हो कि सुबह जल्दी ही जब वो भोर भी नहीं हुई थी, सूर्य नहीं उगा था, जब वो सो रहा था, तभी उसका कज़िन ब्रदर मुराद उसके घर आया और उसने खिड़की के ऊपर खटखटाया. Aram, he said. Now he called him by his name. Aram. I jumped out of bed and looked out of the window. अब देखो एकदम जब नींद में किसी ने उसका नाम पुकारा खिड़की से तो एकदम चमक करके वो उठ करके बैठ गया. कौन? आरम. And he looked out of the window. And what did he see? I couldn't believe what I saw. वो कह रहा है जो कुछ मैंने देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ. It wasn't morning yet क्योंकि अभी सुबह हुई भी नहीं थी. But it was summer and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. वो कह रहा है कि देखो सुबह नहीं हुई थी परंतु डे ब्रेक हो रहा था. डे ब्रेक मीन्स पो फटना, भोर का समय शुरू होने वाला था. एंड इन द कॉर्नर, कॉर्नर से तात्पर्य क्षितिज पर इतना पर्याप्त प्रकाश हो चुका था कि मुझे पूरा आभास था कि जो कुछ मैंने देखा वो स्वप्न नहीं था. अब क्या देखा उसने? माई कज़िन मुराद वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई मुराद एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है. नाउ ये दृश्य ऐसा था जिसके ऊपर उसे यकीन नहीं हो रहा. कारण बिकॉज बोथ ऑफ द पर्सन्स आरम एंड मुराद belonged in such a poor family where it was quite impossible for them to arrange meals of two times a day. So how can Murad buy a beautiful horse? And the family was remarked or marked by their honesty and truth. So he couldn't believe that he had stolen the horse. दो प्रकार की स्थिति थी. इतने गरीब थे कि खाने को नहीं था तो घोड़ा कहाँ से आया. और फिर वो ट्राइब अपने ट्रुथ और ईमानदारी की वजह से इतनी विख्यात थी कि वो सोच भी नहीं सकता था कि मुराद ने घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि चोरी कभी करते ही नहीं थे. हर व्यक्ति उस जाति के ऊपर उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए विश्वास करता था. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. अब देखो मैंने खिड़की के बाहर अपना सर निकाला और आंखें मलते हुए देखा. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. उसने आर्मेनियन भाषा में कहा हाँ भाई हाँ ये घोड़ा ही है. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. जल्दी करो अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है, तुरंत बाहर आ जाओ.
I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. कि मैं इस बात को तो जानता था कि मेरा भाई मुराद जो है वो जीवित होने का संपूर्ण आनंद लेता है। इस संसार में अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित होने का संपूर्ण आनंद वो लेता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे भाग्य की गलती द्वारा इस संसार में डाल दिया गया हो। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा था ये तो मेरे विश्वास से भी कुछ ज़्यादा ही था। घोड़ा कहाँ से आया? In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. वो कह रहा है कि यद्यपि मेरी स्वयं की जो स्मृति थी, जो सुखद यादें थी, उनमें सबसे सुखद याद यही थी कि मैं घोड़े की सवारी करूं, कि मुझे एक घोड़ा मिले और मैं घोड़े की सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन ये एक बड़ी शानदार बात थी। लेकिन दूसरी बात ये थी कि हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा। और यही वो हिस्सा था कि हम इतने गरीब थे कि मुराद घोड़ा कहाँ से लाता। तो हमारी गरीबी मुझे इस बात पर यकीन नहीं करने दे रही थी कि उसके पास घोड़ा कहाँ से आया। वॉट आई सा। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी पूरी जाति गरीबी से ग्रसित थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोगेलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। क्या कह रहा है? देखो, संसार में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी में जीवन जीते थे इस जाति के लोग। मतलब इनसे ज़्यादा गरीब और कोई प्रजाति संसार में नहीं है जितना ये थे। तो फिर nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। वो कह रहा है कि हमारी जाति में से किसी को ये समझ में भी नहीं आता था कि हमारे पास इतने पैसे आ कहाँ से जाते हैं कि हम हमारे पेट के अंदर भोजन डाल सकें, यानी कि हमारे पेट को भोजन से भर लेते। इतना पैसा भी कहाँ से आता। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार का सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति है ना, उसे भी नहीं पता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोग हमारी ईमानदारी के लिए विख्यात थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world। वो कह रहा है कि लगभग 11 शताब्दियों से हमारी जाति 11वीं शताब्दी या 11 शताब्दियों से हमारी प्रजाति या हमारी जाति अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात है। उस समय जब हम धनवान हुआ करते थे तब से हम हमारी ईमानदारी के लिए विख्यात हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, आफ्टर देट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। कि सबसे पहले हम लोग इस बात पर गर्व करते थे कि हम लोग ईमानदार है, उसके बाद हम सच और झूठ पर विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। कि हम में से कोई भी व्यक्ति ने कभी इस प्रकार की जो लोग हमारे पर विश्वास करते थे कि हम ईमानदार हैं, कभी भी हमारे परिवार में से किसी भी व्यक्ति ने इस बात का फ़ायदा उठाने का प्रयास नहीं किया और किसी ने कभी कोई चोरी नहीं। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it, देखो, लेकिन मैं देख सकता था घोड़ा इतना शानदार था, उसकी गंध भी बहुत शानदार थी। So lovely, even though I could hear it breathing, मैं उसकी सांसों को सुन सकता था। So exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family। लेकिन वो कह रहा है कि मैं घोड़े को देख सकता था, उसकी गंध महसूस कर सकता था, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि इस घोड़े का मेरे भाई मुराद से क्या लेना देना, या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य से इसका क्या लेना देना है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा था ही नहीं कि हम घोड़ा खरीद लें। Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it,
ही मस्ट हैव स्टोरन इट एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोरन इट। अब देखो उसके दिमाग में दो क्वेश्चन थे। पहला तो कि मुराद घोड़ा ख़रीद नहीं सकता था, और अगर ख़रीद नहीं सकता था तो क्या उसने घोड़ा चुराया? घोड़ा चुराए ये उसकी अंतरात्मा विश्वास नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी जाति कभी भी चोरी करती ही नहीं थी। वो अपने ईमानदारी के लिए विख्यात थे। नो मेंबर ऑफ गारो गैलेनियन फैमिली कुड बी ए थिफ, के गारो गैलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य कभी चोर हो ही नहीं सकता था। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। देयर वॉज ए pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me। अब वो कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने स्टेयर्ड यानी कि घूरा अपने भाई मुराद को और घोड़े को, और मैंने पाया कि दोनों के अंदर एक पवित्र खामोशी थी, एक हास्य था, और इन चीज़ों ने मेरे मन के अंदर प्रसन्नता भी भरी और साथ ही साथ भय को भी उत्पन्न कर दिया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने कहा मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। उसने कहा खिड़की के बाहर कूद के आ जा अगर तेरे को सवारी करनी हो तो। इट वॉज ट्रू, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। कि ये स्पष्ट हो चुका था कि उसने घोड़ा चुराया था और वो वहाँ पर मुझे आमंत्रित करने आया था सवारी करने के लिए। अब मेरी इच्छा है कि मैं सवारी करूँ या ना करूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उससे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि ठीक है, मैं ऐसा सोचता था या मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना वास्तव में चोरी नहीं है। ये वैसी चोरी नहीं है जैसा कि धन चुराया जाता है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग इट ऑल इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर। वो कह रहा है कि जिस तरीके से मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े के लिए पागल थे, अगर इस प्रकार का पागलपन हो तो सवारी करने के लिए चुराया गया घोड़ा चोरी नहीं कहलाएगा। इट वॉजेंट स्टीलिंग, इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। वो कह रहा है कि नहीं, ये तब तक चोरी नहीं होगी जब तक कि हम इसे बेचने के लिए प्रस्तुत ना करें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो मैं जानता था कि ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी शैल स्टडी द नेक्स्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।